Okay, good morning, class. Till now, we have discussed about counting principles, having two rules, two elementary rules, that is known to be as, yes, that is known to be as sum rule, and the other one is product rule. Okay. Then after we have discussed about permutations. Okay. And now the next topic is combinations. So how we are defining this combination? Each of the different group or selections which can be formed by taking some or all of a number of objects irrespective of their arrangement is called to be as combination. Now what it means, in simple words you can say the selection of objects from a set of objects, whether some of them or all of them, irrespective of their order, is called to be as combination. Okay. Or in more simpler way, you can say an unordered selection of objects is called to be as combination. Whenever we have to do ordered selection, then it is called to be as permutation, and whenever we have to perform unordered selection, then it is called to be as combination. Okay. If we are saying that unordered, it means the order of the elements will not have a significance. Okay. So here we are saying selection of objects from a group of objects where the order of selection does not matter is called to be as combination. Okay. If it is the order of selection matters, then it is called to be as permutation. Okay. So this is the main difference of permutation and combination. Whenever we have to do unordered selection, we have to use combinations, and whenever we have to do ordered arrangement or selection, then we have to use combinations. Sorry, permutations. Okay. Here let S is the set having n elements. We are taking any set S having n number of elements. Then a combination of these n elements taken R at a time. Okay. Combination of these n elements taken R at a time is any selection of R elements where order does not count. And this kind of a selection is called to be as R combination. तो जैसे लास्ट टाइम हमने R परम्यूटेशन डिफाइन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे R कॉम्बिनेशन डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. So whenever we are saying this R combination, it means we are concerned with the selection of R objects at a time from n objects where order does not matter. Okay. It is simply a subset of S with R elements, and the number of such combinations will be denoted by NCR. This is NCR. तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो. So these are the different ways to represent this R combinations. Okay. Here we will follow this one, this notation.
So whenever we are saying NCR, it means selection of R objects from a set of N objects where order does not matter. This is denoted by NCR. Okay. Now the next thing is this NCR is defined to be as NPR, that is permutation of R objects, divided by R factorial. Okay. So this is the formula, which is the proved formula that we are using, which states that NCR equals to NPR divided by R factorial. And as you know, NPR is defined to be as factorial N upon factorial N minus R. This is the value of NPR, that is N factorial divided by N minus R factorial. And since this quantity has to be divided by R factorial, so therefore in denominator we have to include this R factorial. Okay. So that's why we have defined this NCR is equals to N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. So this is the relationship between permutations and combinations. So any queries up to here you can ask? Anyone? Any doubts up to this point? Tell me. Okay. Moving to next. So we can use this notation also or we can use this notation also. तो ये दोनों का मतलब ही एक ही होता है, ठीक है. तो NCR को हम सुपरस्क्रिप्ट में N और सबस्क्रिप्ट में R और ये पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. Got that? Now let us take one example here. We have to find the number of combinations of 4 objects, and these objects are A, B, C, D, taken 3 at a time. Okay. So how to define this? So first thing, we have to note here that each combination of 3 objects determine factorial 3, that is 6 permutations of the objects as follows. Why this is? So let us say we are considering these 3 elements A, B and C. Okay. अब इस 3 एलिमेंट को आप 6 वे में अरेंज कर सकते हो. इट कैन बी ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. These are the 6 possible arrangements
for three objects A, B, and C. Okay. Now let us say we have to consider three objects A, B, and D. Again, this also will be arranged in 6 possible ways. In the same way, if we consider three elements to be A, C, D, again this will also be arranged in 6 distinct permutations. Likewise, if we consider the three elements to be B, C, D, it also will be arranged in 6 possible ways. So I have listed all the 24 possible arrangements. Here I have listed all the 24 possible arrangements. Got that? From this, we can conclude the number of combinations multiplied by factorial 3 gives us the number of permutations. Okay, what it means? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. या तो आप ABC यूज कर सकते हो, या आप ABD यूज कर सकते हो, या आप ACD यूज कर सकते हो, और या फिर BCD यूज कर सकते हो. इन 4 के अलावा कोई पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं होगा इन 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेयर वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट एट ए टाइम. ठीक है, मैंने बताया हियर इन कॉम्बिनेशंस ऑर्डर डज नॉट मैटर. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 वैल्यूज हैं ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ये 6 जो है एक ही कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ABC. तो ये 6 जो है केवल इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने 3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एंड दैट इज A, B एंड C. अब इस A, B और C को किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया ये मैटर नहीं करता कि पहले हमने A लिया या पहले हमने B लिया या उसके बाद C लिया. तो ये जो ऑर्डर है ये यहां मैटर नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टू बी एज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो व्हाई वी हैव गॉट दिस 4? तो वी हैव गॉट दिस 4 बिकॉज द वैल्यू ऑफ 4C3 is equals to 4. The value of 4C3 is equals to 4, क्योंकि 4C3 की वैल्यू क्या होगी? 4P3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. मैंने अभी बताया आपको कि NCR की वैल्यू होती है NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल. ठीक है, दैट्स वाई it will be considered to be as 4P3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. और 4P3 की वैल्यू होती है 24, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को लेके जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे दैट विल बी 4P3. क्योंकि पहले पोजीशन के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे पोजीशन के लिए 3 पॉसिबिलिटी, और तीसरे पोजीशन के लिए 2 पॉसिबिलिटी, एंड दैट्स वाई 4 into 3 into 2 एंड दैट इज 24. अब इस 24 को R फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू मिलती है 4. Therefore here we have got 4 combinations. और ये 4 combinations क्या हैं? ये ABC, ABD, ACD और BCD. ये ऑर्डर मैटर नहीं करता. ACD लिखा या CDA लिखा या CAD लिखा या DCA लिखा, इन 6 में से कोई भी वैल्यू ले लो, सभी का मतलब एक ही है कि हमें 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं,
ए सेलेक्ट करना है, सी सेलेक्ट करना है और डी सेलेक्ट करना है, बस ये इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप पूछा था तो ये टोटल 24 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि 4p3 की वैल्यू होती है 24। अगर आपसे कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, बिकॉज 4c3 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4c3 की वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू 1 होती है। और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट 4। So either we can simplify by this way. Okay, so this is the difference of permutations and combinations. Let us take one example. Suppose this is the problem statement. The first thing we must be very clear about is how to find out or how to determine by looking at the problem whether it is permutations or combinations. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सेपरेटली पढ़ रहे हैं, पहले हमने परम्यूटेशन पढ़ा और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये आइडिया तो है कि हम कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं या परम्यूटेशन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पेपर में प्रॉब्लम दिया जाएगा कि सॉल्व दिस वन, तो वहां पे ये मेंशन नहीं होगा कि ये परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसके लिए आपके दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एट व्हाट प्लेस वी हैव टू यूज परम्यूटेशंस and at which places we have to apply combinations just by looking at the problem statement। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। farmer buys 3 cows, 2 goats and 4 hens from a man who has 6 cows, 5 goats and 8 hens. Find the number of choices that the farmer has. So by this problem statement, it is very clear that it is a problem of combination. Why combination? क्योंकि जो 3 cows हमें लेने हैं वो किस ऑर्डर में लेना है ये मैटर नहीं करेगा, कि ये वाला काउ पहले लेना है, ये वाला काउ बाद में लेना है। ऐसे ही जो गोट का सिलेक्शन है वो भी मैटर नहीं करता। द थिंग इज दैट वी हैव टू सेलेक्ट 2 गोट्स। हाउ दे आर सेलेक्टेड दैट डज नॉट मैटर, मीन्स इन व्हाट सीक्वेंस दे आर सेलेक्टेड दैट डजंट मैटर। That's why in this problem statement we have to apply combinations, not permutations. Okay, next we have to find out the number of choices. So we have 3 kind of objects. One is cow, other one is goat, and the third one is hen. And we have to select these 3 of 3 element or 3 types. So that's why we have to apply here product rule, and therefore the total choices will be, तो काउज हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल 6 काउज हैं, उसमें से जो फार्मर है उसको 3 सेलेक्ट करना है, और ये जो सिलेक्शन है वो अनऑर्डर्ड है, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 6C3। इन द सेम वे जो गोट्स हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए 5C2, और जो हेन्स हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए 8C4,
and since we have to select, or the farmer has to select all the three kind of animals, so therefore we have to apply product rule to obtain the total number of choices, and therefore the value will be 6C3 multiplied by 5C2 multiplied by 8C4, and the value total will be 14,000. Anyone having any doubts, you can ask. Yes, turn off your camera, Jitendra. Yes, anyone having doubts in this, you can ask. Others? Sir, how we can change this question in permutation? How we identify this question is permutation? Okay. How, If we are asking for find the total number of possible arrangements for 3 cows, 2 goats and 4 hens, yes sir. then it is a problem of permutations. क्योंकि जो अरेंजमेंट होगा वहां पे वो जो अरेंजमेंट है उसमें ऑर्डर मैटर करेगा. जैसे 3 लोगों को आपको लाइन में खड़ा करना है, तो वो किस ऑर्डर में लाइन में लग रहे हैं वो मैटर करता है. एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से अलग होगा. जैसे मान लो मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूं तो ये एक सीक्वेंस है, मैं सेकंड पोजीशन पे आ गया तो ये एक दूसरा सीक्वेंस है, और मैं अगर थर्ड पोजीशन पे आ गया तो ये एक तीसरा सीक्वेंस है. ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है. लेकिन अगर हमें सिंपली, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि 6 काऊ है उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करना है, तो वो 3 हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट सेलेक्ट 3. Okay sir. ओके, तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अप्लाइड कॉम्बिनेशंस नॉट परम्यूटेशन. जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करते जाएंगे वैसे वैसे और आपको ये आइडिया ब्रॉडर होता जाएगा. ठीक है, तो स्टिल देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके, एट सम लेटर पॉइंट. ओके, Thank you. yes, anyone else? In this problem statement, I think everyone should have idea that we have to apply combinations, because it will be simply an unordered selection. और ये हमें प्रॉब्लम देख के पता चल जाता है. यस तुषार. सर हम लोगों ने इन कॉम्बिनेशंस को प्लस कब किया होता सर? कॉम्बिनेशंस को प्लस तब किया होता है जब जो है हमें, अगर इसमें पूछा जाता कि ओके, एक चीज इसमें ये भी है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट द फॉर्मर हैज. अब ये जो चॉइसेस की बात कर रहे हैं, चॉइसेस का मतलब ये हो गया कि जो फॉर्मर है उसको ये तीनों चीजें चाहिए. यहाँ पे चीज का मतलब मैं एनिमल से ले रहा हूँ कि वो जो है, जो फॉर्मर है उसको काऊ भी लेना है, गोट भी लेना है और हैन भी लेना है. ठीक है, अगर इसमें से कोई एक लेना होता तो उस केस में हम प्लस करते. ओके, सारे लेने थे इसलिए मल्टीप्लाई. हाँ, इसमें हमें सारे लेने हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई किए. प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था कि वेन एवर वी हैव टू सेलेक्ट, वेन एवर वी हैव टू टेक द एलिमेंट्स, ओके, जब भी हमें अरेंजमेंट देखना हो जहां पे सभी ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, तो उसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. और जब भी हमें वन ऑफ द एलिमेंट लेना होता है तो हम सम रूल अप्लाई करते हैं. ये मेरा पहला स्टेटमेंट था. जब भी वन ऑफ दिया हो तो वहां पे हम सम रूल अप्लाई करते हैं. जब भी हम ईच वन ऑफ दिया हो Yes, sir, the वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. ये पहला सिंपल स्टेटमेंट है प्रोडक्ट रूल और सम रूल का. ठीक है, तो उसी बेसिक प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो फार्मर है उसको तीनों कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को
यानी तीनों कैटेगरी के एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड हियर प्रोडक्ट। इसी में अगर ये पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस द फॉर्मर हैज ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑफ दिस एनिमल्स, ओके, तो उस केस में हम प्लस कर देते। ठीक है, तो वन ऑफ दिस एनिमल का मतलब ये हो गया कि या तो वो काउ सेलेक्ट कर रहा है, या तो वो गोट सेलेक्ट कर रहा है, या तो वो हैन सेलेक्ट कर रहा है। अब काउ में भी 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, या फिर गोट में 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, या फिर हैन में 8 में से 4 सेलेक्ट करना है। तो वहां पे प्लस हो जाता इन तीनों का। ओके, तो दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन अप्लाई सम रूल विथ कॉम्बिनेशन। Got that? Yes, anyone else? Okay, so we can move to a new next problem. Here we have find the number of subsets of the set 1 to 11, 1, 2, 3, 4 up to 11 having 4 elements. एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम को आप वेरी जो है केयरफुली रीड करोगे तो एक स्टेटमेंट या एक वर्ड इसमें यूज हो रहा है जो आपको नोटिस करना चाहिए, दैट इज सबसेट्स। ठीक है, एंड एज यू नो, ये मेरा जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था आपको तो मेरा ये स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट था कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीन्स अगर कोई सेट है 1, 2, 3 तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डज नॉट मैटर। और सबसेट क्या होता है? किसी सेट का ही सबसेट होता है। ओके, तो ये भी तो सेट ही होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस point, it is very clear that we have to apply here also combination, because this is unordered arrangement. Yes, any queries? Is it clear how we have identified that we have to apply combination or permutation? So from this problem statement, since we are concerned with the number of subsets, and as you know, the elements in the subset has no significance of their orders. Therefore, in this problem too, we have to apply combinations. And what we have to do? So out of these 11 elements, we have to take 4 at a time. और मैंने आपको बताया था selecting r object at a time from a set of n objects where the order does not matter is defined to be as NCR. And therefore, for this problem statement, the answer will be 11C4. I hope it is clear to you. The answer will be 11C4. Okay. And what is the value of 11C4? Yes, tell me. So here, the answer for this problem statement will be 11C4. और 11C4 की वैल्यू होती है, that is 11 factorial divided by
4 factorial into 11 minus 4 factorial. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड देन 7 फैक्टोरियल. ठीक है, और फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके इसलिए बता दे रहा हूँ सो दैट आपको एक बार रिमाइंड हो जाए कि कैसे हम इसको वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, आई होप सबने ये किया होगा. पीएनसी 9th-10th में पढ़ाया जाता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे रिकैप कर रहे हैं. तो 9, 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको. और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. और इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो गया, ये कैंसिल. और 3 इंटू 3 ये 9 हो गया. तो देयरफॉर द आंसर इज 330. Okay, got that? Any doubts? वर्तिका, इट इज नॉट 10C4. ओके, क्योंकि यहाँ पे 11 वैल्यूज हैं 1 से लेके 11 तक, है ना. ये 1 से लेके 11 तक है, तो ये टोटल 11 वैल्यूज हैं. तो देयरफॉर इट विल बी 11C4, नॉट 10C4. गॉट दैट? यस, एनीवन? यस, ओके, कोई बात नहीं. यस, इज इट क्लियर? तो ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ पहले से, आप यहाँ देख सकते हो. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई. देयरफॉर द वैल्यू इज 330. ओके, तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये फाइंड आउट करना है कि हमें कब परम्यूटेशन अप्लाई करना है और कब कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है. ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम में कुछ नहीं है. ओके, जो भी कंफ्यूजन है वो यही होता है कि हम परम्यूटेशन अप्लाई करें या कॉम्बिनेशन अप्लाई करें. ठीक है, तो ये आपको क्लियरली एक वर्ड आप याद रखो, जब भी ऑर्डर्ड सिलेक्शन करना हो हमेशा हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, और जब भी हमें अनऑर्डर्ड सिलेक्शन करना होता है तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. केवल ये एक डिफरेंस है. ऑर्डर्ड दैट मीन्स परम्यूटेशन, अनऑर्डर्ड दैट मीन्स कॉम्बिनेशंस. अगर ये क्लियर है तो कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यस, एनीवन हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क. एनीवन? Okay, so we are stopping here. We will continue from this in the next lecture. Thank you all.